Mr. Speaker, I'd like to introduce a bill to amend certain laws relating to taxes and duties, the Finance Supplementary Bill 2021. A bill further to amend certain laws relating to tax and duties, the Finance Supplementary Bill 2020 stand introduced. The said bill shall not be referred to the Standing Committee as provided in Rule 122 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. Supplementary order of the day. Item number 4A, Mr. Shaukat Tareen Sahab, please. 4A. Sir, Mr. Speaker, I'd like to introduce a bill to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill 2021. G. A bill further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill 2021 stand introduced. The said bill has been referred to the Standing Committee concerned, i.e. the Standing Committee on the Finance and Revenue. Item number 5, Mr. Shaukat Tareen Sahab. Item number 5. Mr. Speaker, I'd like to move the following resolution: that the National Assembly resolves to extend the Federal Government Properties Management Authority Ordinance 2021, Ordinance number 15 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 15/12/2021 under proviso to subpara 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the Federal Government Properties Management Authority Ordinance 2015 of 2021 for the further period of 120 days with effect from 15 December 2021 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution will say aye. All those say no. I think I haven't considered the resolution adopted. Item number 6. Mr. Zawrjeel Babar. Item number 6. Thank you, Mr. Speaker. I move the item number 6, that the National Assembly resolves to extend the elections Third Amendment Ordinance 2021, Ordinance number Roman 20 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 29th December 2021 under proviso to subparagraph 2 or paragraph A of Article 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. आप अपनी सीट पे चले, मैं आपको मौका देता हूँ, आप जाए उससे बात करें, उधर से आप उधर से जाए बात करें, आप बात कर रहे, बात करें जी, बात करें जी। नवीद कंवर साहब जी नवीद कंवर साहब प्लीज। नवीद कंवर साहब प्लीज, आप बात सुन ले प्लीज। ये रोज नई रवायतें पढ़ती जा रही हैं इस हाउस में, जहाँ न आइन को देखा जा मुझे दे रहे ये आप नवीद कंवर साहब प्लीज। नवीद कंवर साहब जी। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि आपने जो आइटम नंबर 5 ऑनवर्ड्स, यार एक मिनट, आप ये भी कहें कि जिन लोगों ने अपोज किया है रूल के मुताबिक उनको बात करनी, ये इस तरह से नहीं हो सकता। 6 इसमें से 8 ऑर्डिनेंसेस में से 6 ऑर्डिनेंसेस ऐसे हैं जो पहले से ही एक्सपायर हो चुके हैं। एक एक्सपायर्ड चीज़ को आप एक्सटेंड
किस तरह से करेंगे? ये तो जैसे कोई मुर्दा शख्स हो, कब्र से निकाल के आप उसमें सांस फूंक रहे हैं, ये नहीं होता। ये अननेचुरल चीज़ है, ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। ये या तो तब होता एक्सटेंशन। इसको आप रिस्पॉन्ड करें, फिर बाबर अवान साहब रिस्पॉन्ड करें। मुझे बात तो करने दो। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। दो बातें हैं जो वो इरशाद फरमा रहे हैं। एक वो ये कहते हैं कि ये चूँकि फाइल किया गया था और आज इसको से इस तरह आप नहीं ला सकते थे एजेंडे पे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस विद इन टाइम हमने फाइल कर दिया था असेंबली में। अब जब जाहिर है इलेक्शन एक्ट जो पिछला मैंने पेश किया उसकी तरह से जब इसको लाया जाएगा जिस वक्त भी एजेंडे पे, उस वक्त ये कंसिडर होगा। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रोसीजरल लैप्स इन द प्रोसीजर व्हिच इज बीइंग अडॉप्टेड बाय द चेयर। Ruling the ordinance which are being extended for a further period of 120 days under Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan do not contain any provision relating to punishment which cannot be inflicted retrospectively under Article 12 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Since there is many precedents available regarding enforcement of laws respectively which do not certain provision relating to punishment. Therefore, there is no embargo in extension of these ordinances by the National Assembly retrospectively. Even otherwise, the resolution for extension of ordinances have been placed in the order of the day since the commencement of current session. However, could not be taken up due to adjournment of the sitting without transaction of business due to lack of quorum or otherwise. Therefore, I had the objection out of order and allowed the extension of the ordinance retrospectively by the National Assembly. जी ख्वाजा साहब ये अपना काउंट कर ले तो आपकी जगह मैं काउंट करता हूँ ना। आप जाए ना अपनी सीट पे काउंट में करता हूँ, अपनी सीट पे खड़े हो जाए, काउंट करता हूँ। इसके बाद जी now I put the resolution to the house. It has been moved the National Assembly. Item number 6. Now I put the resolution to the house. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the election third amendment ordinance 2021 to 20 of 2021 for a further period of 120 days with effect of 29 December 2021 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of class 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution में से आए, all those against say no. खड़े हो जाए अपनी सीट पे जाओ ना अपने लोगों। काउंट बी मेड प्लीज। आप चैलेंज करें ना, उधर से चैलेंज करें तब होगा ना जी। आइटम नंबर 6 पर आप वोटिंग चैलेंज करते हैं? नवीद कमर साहब आप चैलेंज करते हैं? सर हम अपोज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं? हाँ। काउंट बी मेड प्लीज। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में स्टैंड राइज ऑन द सीट। ओके आप अपोज कर रहे हैं और सिर्फ अपोज कर रहे हैं। चलो आगे जाए। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में से आए, ऑल दोज से नो। I think I have it because the resolution is adopted. Item number 7. Dr. Mohammad Farooq Naseem साहब तशरीफ रखे भाई, तशरीफ रखे। फरोग नसीम साहब प्लीज। फरोग नसीम साहब, बाबर अवान साहब। Thank you, Mr. Speaker. I move the item number 7 that the National Assembly resolves to extend the public properties removal of the encroachment ordinance 2021, ordinance number 27, Roman of 2021 for a further period of 120 days with effect from 22nd of December 2021 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A or clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to your house.
it has been moved that the National Assembly resolved to extend the public properties removal of encroachment ordinance 2021-16 of 2020 for the further period of 120 days with effect of 22nd December 2020 under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph A of clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequent resolution is adopted. Item number 8. Babar Awan Sahab, please. Babar Awan Sahab. Thank you very much, Mr. Speaker. I move item number 8 that the National Assembly resolves to extend the regulation of generation, transmission and distribution of the electric power amendment Ordinance 2021, Ordinance 27 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 22nd of December 2021. Order in the House, please. Order in the House, please. To sub-paragraph Roman 2. Order in the House, please. Small a of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the resolution of generation, transmission and distribution of electric power amendment Ordinance 17 of 2001 for the further period of 120 days with effect of December under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those that say no. I think ayes have it and consequent resolution is adopted. Ji. Shazia Mari. Challenge कर रहे? Sir, I challenge the vote. Count should be made. हाँ, ये चैलेंज वोट चैलेंज किया गया है. जो इसके हक में है, रेजोल्यूशन के हक में है, वो अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. जो अपनी सीटों के इसके हक में अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. काउंट बी मेड. अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं. काउंट हो रही है. अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं. कौमी असम्बली का इजलास जारी है. स्पीकर असद कैसर की सदारत में और शाज़िया मरी की जानिब से चैलेंज करने पर अब काउंटिंग की जा रही है, गिनती की जा रही है. जो काउंटिंग की गई थी इसमें ओपोजिशन के चैलेंज करने पर अब जो मेंबरान इस बिल के हक में हैं उनकी गिनती की जा रही है और जो मुखालफत में हैं इसके बाद उनकी भी गिनती की जाएगी. और ये इजलास जिसमें ओपोजिशन ने एहतजाज किया, नारेबाजी की, अभी तक ये इजलास जारी है. और जो आज बिल पेश किए जा रहे हैं उसके हवाले से ओपोजिशन ने पहले से ही ये इंदिया दिया रखा है कि हम एहतजाज करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे. जो मुखालिफत में है वो तशरीफ रखे. जो रेजोल्यूशन की मुखालिफत में है वो तशरीफ रखे. करारदाद पर वोटिंग को चैलेंज किया ओपोजिशन की रहनुमा शाज़िया मरी ने. और अब रायशुमारी की जा रही है, गिनती की जा रही है कि कितने अफराद, कितने मेंबरान करारदाद के हक में हैं और मुखालिफत में कितने मेंबरान हैं. कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत जारी है. अजहर फारूक हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे ज़रा ऐवान का माहौल जान लेते हैं. अजहर बताइएगा, इस वक्त चैलेंज किया है शाज़िया मरी ने काउंटिंग को, ज़रा हमें आगाह कीजिएगा वहाँ मनाजिर क्या है, सूरत हाल क्या है. आज कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है. मुख्तलिफ आर्डिनेंस हैं जो जिनमें तोसी जो है वो 120 दिन की वो ज़रूरी थी, वो आर्डिनेंस जो है वो पेश की गए. 3 आर्डिनेंस की तोसी के हवाले से करारदादें जो है वो ऐवान में करारदाद थी. चैलेंज किया करारदाद के हक और वो शुमारी की जाएगी. जबकि इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने एक को ज़िमनी मालियाती बिल जो है वो पेश किया है जिस पर अपोजिशन की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया. इसके साथ साथ स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम के हवाले से बिल भी कौमी
अच्छा अजहर, एमक्यूएम ने अभी तक फैसला नहीं किया कि वोट देंगे या नहीं हक में, तो जो काउंटिंग हो रही है, रायशुमारी हो रही है, उन अरकान में जो कि जिनको खड़ा करने का रहने का हुक्म दिया गया है, कहा गया है कि हम गिनती करेंगे जो हक में हैं, उनमें एमक्यूएम के अरकान शामिल हैं या नहीं? अजहर फारूक, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी जी, जो अभी गिनती हो रही है, रायशुमारी हो रही है इस बिल के हक में, क्या उसमें एमक्यूएम के अरकान शामिल हैं या नहीं? जी, एमक्यूएम के अरकान शामिल हैं और हुकूमत के जितनी भी इत्तेहादियां वो इसमें शामिल हैं। ये आर्डिनेंस हैं, उनमें तौसीक की करारदादें हैं, उन पर रायशुमारी हो रही है। तो इस वक्त जो अरकान खड़े हैं वो हुकूमती अरकान हैं जो कि इस करारदादों की हमायत कर रहे हैं, जबकि बाद में रायशुमारी होगी अपोजिशन की तरफ से जो कि मुखालफत करेंगे। तो एमक्यूएम समेत जितने भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो इस रायशुमारी का हिस्सा हैं। ठीक है, और ज़रा अपोजिशन की जानिब से बताइएगा, हम देख भी रहे हैं और नाज़रीन भी देख रहे हैं उनकी जानिब से शोर शराबा किया जाता है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त उनकी तरफ से? ये अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी की, प्ले कार्ड भी अपोजिशन अरकान ने उठा रखे थे और स्पीकर के डेस्क के सामने अपोजिशन अरकान जमा हो गए थे। अपोजिशन मुखालफत कर रही है इस ज़िमनी मालियाती बिल की और आज अपोजिशन ये तय किया था कि वो एहतजाज करके इसका रास्ता रोकेगी। तो आज अपोजिशन इस वक्त ऐवान में एहतजाज कर रही है, लेकिन इस वक्त जो है वो रायशुमारी हो रही है करारदादों के हक में और मुखालफत में। ठीक, हमारे साथ ही रहिएगा। अजहर फारूक हमें आगाह कर रहे हैं। इस वक्त स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस की तौसीक़ की मंजूरी के लिए पेश किए गए हैं और आज ज़िमनी मालियाती बिल के हवाले से इजलास है। और आज की ज़ाहिर अहम खबर यही है जिस पर हम ये देख रहे हैं कि जो काउंटिंग और जो तरीक़ाकार है उस पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। अभी शाज़िया मरी ने चैलेंज किया है, दोबारा से कहा है कि काउंट किया जाए और इस वक्त गिनती का अमल जारी है कौमी असम्बली के इजलास से। और नुक्ता एतराज़ पर जवाब दे रहे हैं डॉक्टर बाबर अबान और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन यहाँ पर मौजूद हैं। और जो बिल के हक़ में हैं उनसे कहा गया है कि वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएँ और बिल की मुखालफत में लोग जो हैं वो अपनी अरकान अपनी सीट पर विराजमान है। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त गिनती का अमल जारी है और इसके बाद मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस हैं जिनका ये पेश करने का सिलसिला जारी है हुकूमत की जानिब से। और कौमी असम्बली के इजलास की सदारत कर रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर।